Good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning. Welcome. Good morning, sir. You are all being welcome here. Kamal Khan, Aradhana Misra, Dipanshu Misra, Monica, Nehashi, Tarun Lohia, Gautam Sharma. Only 7 we are here, including me and RK Public School, 9 in number. Means the children are only 9 here. केवल 9 बच्चे हैं बस. 7 बच्चे हैं केवल बस total. What had happened the rest? Because English haven't taken almost more than 13 students, but joining only 7, it is 9-3. Do on your video, everyone. Now I am going to start the lessons. My dear students, we are studying the third level. Yesterday, I made you understand what is the meaning of the third level here. It is a place, according to the writer, it is a place where he found everything unusual, uncommon. You saw how himself is going to explain the incident, what had happened with him. He told after doing the job, one day he did the job late night and just he was in hurry for the home since his wife was waiting for him. So that's why he wanted to take a shortcut way. So he took the subway, I mean underground. When he went there, he went first level, second level, and again he found a different door where he got the third level, according to him. And everything, it was unusual over there. Even he has visited many times. He had visited the several times the same place, but whenever he was going there, totally it was new. He couldn't understand in which world I have come. Every time it was new. He accepted that he had already visited the place. But whenever I am coming, I am getting everything new here. So he couldn't understand about it. And he explained all the incident with his friend Sam, psychiatric. Yesterday I taught the last line, how he's going to in the third level. Now let's see today. Again, I'm going to share the screen. Please wait here and try to get the story what is going to be happen here. Yeah, from here, bullets. Can you see everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Good. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing our new corridor and staircase like roots. Why the writer is saying like that? Every day the central, every day Grand Central is growing like a tree. जैसे पेड़ बढ़ता है, उसके ब्रांचेज, उसके पत्ते प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं, वैसे ही उनको ये जो स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, जब वो जाते थे तो वहां उनको कुछ ना कुछ नए चीज दिखाई पड़ते थे. इस नए चीज को उन्होंने ये कहा कि ग्रोइंग लाइक अ ट्री. लाइक अ ट्री, the new leaves, new branches grow day and night in the plant. The same was happening on the Grand Central Railway Station. Because everything
was adding the new thing over there, pushing our new corridor and staircase like route. What he is saying, a staircase, corridor, it was going high up in the sky. So he found there everything new things. So he telling that it is growing like as a plant, like as a tree. Means the development. It show the development of that railway station was going day and night. इससे पता चलता है उस रेलवे स्टेशन का जो रिनोवेशन था, जो उसका मॉडर्नाइजेशन था, टेक्नोलॉजी, वो दिन रात वहां पर जो है नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे थी और जब जाते थे उनको नया ही दिखाई पड़ता था। इसलिए उन्होंने कहा कि पेड़ में जैसे नए नए ब्रांचेज लगते हैं, जितना तेजी से बढ़ते हैं उतना ही तेजी से वह सेंट्रल ग्रांड स्टेशन बढ़ रहा था। There was probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that was how the tune I got into, but I never told my psychiatric friend about that idea. Now he's going to add the another thing. He's going to add about the tunnel. जो सुरंग उनको मिला वो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो टनल थी वहां पर इतनी लंबी टनल थी, इतनी लंबी सुरंग थी कि उसका रास्ता कहां से, किस प्रकार से एग्जिट होता है, कहां निकलता है, यह उनको खुद पता नहीं था, क्योंकि इतने लोग वहां आते जाते थे, इतने लोग, इसलिए उनको यह आइडिया नहीं था कि वह किस साइड से जो है वो उसका एग्जिट है। They are given कि so many people, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit, मतलब number of people were passing through this tunnel, so he was not knowing the exact ending of the tunnel. वो टनल का एग्जैक्टली एंडिंग कहाँ है ये उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि इतने लोग आते थे तो उन्हें पता ही नहीं चलता था कि ये कहाँ से निकलता है, कहाँ की ओर जाता है। लेकिन इस बात का एक्सप्लेनेशन उन्होंने अपने दोस्त जो साइंटिफिक दोस्त साम हैं उससे इन्होंने इस बारे में नहीं बताया था। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. जब मैंने कॉरिडोर के ऊपर गया तो वहां क्या पाया मैं, I was in began angling left, मेरे लेफ्ट साइड में एंगल थे, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और डाउन, और जो है राइट तरफ क्या था, स्लैंटिंग डाउनवर्ड था। मतलब उसकी जो बनावट के बारे में बात कर रहे हैं वो स्लैंट था, नीचे की वो स्लैंट जो है सीधे हो जाता था। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मेरे को ये लगा कि शायद मैं कहीं गलत जगह पर आ चुका हूं, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी थी। पहला बार उन्होंने इस एंगल में बने देखा, स्लैटिंग हाइट देखा, तो उन्हें ऐसे लगा कि शायद वो लग रहा गलत जगह पर आ गए। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने रुका नहीं, मैं चलते रहा। आई केप्ट ऑन वॉकिंग। ऑल आई कुड हियर वाज द empty sound of my own footstep and didn't pass a soul. I didn't find anyone over there. I found myself alone there because no any voice was coming from the tunnel where I was. मेरा था टनल में, वहां किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी, मानो लगा कि इस पूरे टनल में मैं अकेला हूं। I didn't pass a soul. सोल मतलब क्या है, आत्मा, आत्मा मतलब पीपल, पीपल से मतलब है। कहा कि वहां कोई भी नहीं थी, मानो ऐसा फील हुआ कि मैं पूरे इस टनल में मैं केवल अकेला ही हूं। देन आई हर्ड, तब मैंने क्या सुना,
Then I heard that sort of hollow roar ahead. That means open space and people talking. थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज महसूस होने लगी और पता चला कि मेरे अलावा और भी कुछ लोग इस टनल में हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट। अचानक टनल जो है वो लेफ्ट की ओर मुड़ गया, मतलब टनल का जो रास्ता था जाने का वो लेफ्ट की ओर हो गया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। मैं उसी टनल से होते हुए मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया। द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। For just a moment, I thought I was back on the second level. थोड़ा समय के लिए तो मेरे को ये महसूस हुआ कि शायद लग रहा है मैं सेकंड पर फिर वापस आ गया है क्या, क्योंकि बनावट जो है ना सारे लेवल की सेम थी। It was equally constructed all the level. That's why I became confused whether I am in third level or whether I am in second level. So he was totally confused. Why he was confused? Because they all were built equally, constructed equally in shape and size. क्योंकि सबका शेप और साइज इक्वल था तो मेरे को ये लगा कि हम फिर से सेकंड पर आ गए। For a just I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. लेकिन मैंने देखा कि वहां जो स्टेशन का जो ये है वो छोटा है। There were fewer tickets window. बहुत कम जो है टिकट लेने के लिए खिड़कियां थी। एंड ट्रेन गेट्स, ट्रेन के गेट भी थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो नोटिस बोर्ड था इट वाज ऑन द वुड, नॉट इट वाज अ स्लेट, नॉट इट वाज द सीमेंट, इट वाज ऑन द वुड एंड लुकिंग वेरी व्हाट, इट वाज नॉट क्लियर, मतलब वेरी ओल्ड फैशनड। वो पुराने लिख रहे थे, जो बोर्ड लगाए हुए थे वहां वो टोटली ओल्ड थे। बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeve protector. What kind of uniform they wore? He is saying like that. वो बोल रहे हैं कि वहां जो लोग थे वो कैसे कपड़े पहने थे, कैसा यूनिफॉर्म पहने थे, ये बता रहे हैं। The man in the booth wore a green eye shade. वो हरे रंग के उनका आई शेड था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, एक बहुत बड़े बड़े ऊपर से लेके नीचे तक जो सिंगल होता है वैसे स्लीव में थे। द लाइट्स वेयर डीम, लाइट्स बिल्कुल धुंधला था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, मानो फ्लिकरिंग हो रहा है। फ्लिकरिंग मतलब क्या है, अप एंड डाउन हो रहा है। देन आई शो व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। फिर मेरे को समझ में आया कि ये जो है गैस लाइट का फ्लेम क्यों जल रहा है यहाँ पर। ये गैस लाइट का फ्लेम क्यों है, जैसे हम घरों में गैस जलाते हैं तो फ्लेम बाहर निकलता है, तो वैसे ही वो गैस लाइट के फ्लेम बाहर आ रहे थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि व्हाट इज हैपनिंग, इन विच वर्ल्ड आई हैव कम, मैं किस दुनिया में आ चुका हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। देयर वर brass spit on the floor and across the station a glint of light caught my eye. What more I saw there? There were brass spit on, spit मतलब क्या होते हैं, कहीं की दीवार पर लिखा रहता है नो स्पिटिंग, पता है ना। निखिल आर यू हियर, कैन यू हियर मी निखिल? गौतम कैन यू हियर मी? यस सर। बच्चे तो जवाब नहीं दे रहे। निखिल नहीं है क्या ऑनलाइन?
because I am sharing the screen. I could spoke. Hey, Nikhil, are you here? Can I talk with you? क्या हम? तो नहीं है, नहीं He is not here. नहीं है सर, चले गए। Left. Yes, sir. Why he left? हाँ सर, सर लेफ्ट। Only he will send the Correction problem. attendance. अच्छा, correction problem में भी ना? Yeah, sir. Okay, Maybe, fine. sir. अच्छा, okay, fine. Dipanshu, may I know? Somewhere. Yes, sir, I know. Yeah, spitting मतलब क्या होता है बेटा? Sir, थूकना. Yeah, good. थूकना। Who spoke? Gautam. Yes, sir. सर दीपांशु। Okay, both are fine. Okay, good. तो क्या देखा उन्होंने यहाँ? राइटर ने क्या देखा बेटा? There were brass spit on. ब्रास स्पिट ऑन मतलब होते हैं जो पीक हम देते हैं, मतलब थूकते हैं, तो उसके लिए वहां पर एक ब्रास का बना हुआ एक जो है कोई कंटेनर था जिसमें लोग थूकते थे। गॉट? ब्रास का बना हुआ है। ब्रास इज वन काइंड ऑफ मेटल। तो देयर वेयर ब्रास स्पिट ऑन द फ्लोर। उस फ्लोर पर रखे हुए थे एक ऐसा कंटेनर जिसमें लोग स्पिटिंग करते थे। एंड across the station a glint of light, a glint of light मतलब एक धुंधली जो है लाइट वहां से निकल रही थी। जहां पर वो गए और बिल्कुल सब कुछ जो है अनकॉमन था। एवरीथिंग वाज अनयूजुअल, ही हैड नेवर सीन लाइक ऑल। न तो उन्होंने ऐसा यूनिफॉर्म देखा, न तो उस पर से लाइट जलते देखा, और न इस पर से कोई ऐसा कंटेनर देखा। तो उन्हें लग रहा है कि मैं कहां पर, मैं किस दुनिया में आ गया हूं। He explaining. Glint of light caught my eye. अचानक मेरे आंखों में एक लाइट जो है वो दिखाई पड़ा। A man was pulling a gold watch from his vest pocket. एक बंदा अपने वेस्ट, क्या होते हैं वेस्ट तो पता ही है, कपड़ा है, और वेस्ट कहाँ है, कमर के ऊपर में होते हैं। करा के पॉकेट से एक बंदा ने सोने की घड़ी निकाली। A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. अचानक क्या किया, वो घड़ी का कवर निकालता है। कवर निकालने के बाद घड़ी पर एक बार देखता है, और देखने के बाद फिर फ्राउंड। फ्राउंड मतलब फिर गुस्से में आ जाता है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है वहां, whatever it is happening over there, it is the first time when the writer have saw such a scene. So for him, really it was shocking. वास्तव में उनके लिए तो सारे शॉकिंग ही था कि ये एक बंदा है, सोने की घड़ी निकालता है, लाइट वहां अजीब जलती है, खिड़कियां पुराने किस्म के हैं, बोर्ड पुराने किस्म के लगे हुए हैं, या तो एवरीथिंग जो थर्ड लेवल पर इनका अनयूजुअल लग रहा है। तो वॉच एंड फ्राउंड, वो अचानक घड़ी निकालता है, फिर देख कर घड़ी के ऊपर फिर वो फ्राउंड, वो गुस्से में आ जाता है। देन व्हाट हैपन, फिर होता क्या है वहां? लेट अस सी देयर। या his watch and frowned. He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapel, and he had a big black handlebar mustache. अब क्या देख रहे हैं उन्होंने? एक बंदा को देखा, वो क्या पहना हुआ था? ही ओरा डर्बी हैट। कहा कि एक प्रकार का टोप है, हैट है, जो विदेशी लोग नहीं पहनते कभी कभी ना, वो जो स्ट्रॉ का बना होता है, वो एक टोप पहना हुआ था। लेट्स सी हियर, पिक्चर इज नॉट गिवन देयर, है ना। अब सच अ पर्सन, सो जस्ट वी शुड इमेजिन, हमें केवल इमेजिन करना है, बिकॉज पिक्चर तो दिया हुआ नहीं है ना। या हैट, अ ब्लैक 4-बटन सूट, 4 बटन वाला सूट था, विद टाइनी लैपल्स, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच।
और देखिए क्या क्या है, वो एक जो है मुस्टैच, मतलब उसकी मूछ लगी हुई है बड़ी बड़ी. देन आई लुक्ड अराउंड and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. और जितने भी लोग थे वो सब 18वीं और 19वीं शताब्दी के ड्रेस पहने हुए थे. मतलब ओल्ड फैशन यूनिफॉर्म दे वर. Whatever they were, they all had the uniform of 18th and 19th century. कहा कि सब पुराने किस्म के, पुराने फैशन वाले कपड़े पहने हुए थे. I never saw so many beards, side bum and fancy mustaches in my life. मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी भी beards, ऐसा दाढ़ी वाले, ऐसा मूछ वाले बंदा को मैंने कभी देखा नहीं था. A woman walked in through the train gate. एक मैंने महिला को देखा कि वह गेट, ट्रेन की गेट की तरफ जो है वो जा रही है. She wore a dress with leg of mutton, leg of mutton sleeve and a skirt to the top of her high button shoes. अब एक लेडी को देखा, उसका भी यूनिफॉर्म समथिंग शॉकिंग था. बैक ऑफ हर, उसके पीछे, बैक ऑफ हर, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. कहा कि मैंने उसके पीछे देखा एक लोकोमोटिव. लोकोमोटिव क्या होता है चिल्ड्रन? डू नो द लोकोमोटिव? लोकोमोटिव क्या है? ए पावर्ड रेलवे व्हीकल है. रेलवे व्हीकल है मतलब एक प्रकार से इंजन है रेलवे का, जो ट्रेन को खींचने का काम करती है, उसको लोकोमोटिव कहते हैं. बनारस में, हमारे इंडिया में इस प्रकार के इंजन जो है वो बनारस में बनता है, जिसको DLW कहा जाता है. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स in our country in India. Such type of a factory has been set up where such type of engine is going to be constructed, manufactured. वहां इस तरह के मशीन और उस तरह के इंजन बनते हैं जो ट्रेन को खींचने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं लोकोमोटिव. तो DLW कहते हैं. हमारे इंडिया में बनारस में ऐसा इंडस्ट्री है. तो उन्होंने देखा कि लेडी को, और लेडी के पीछे देखा उन्होंने एक इंजन को, रेलवे इंजन को, अ वेरी स्मॉल courier, a very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack. And then I knew. कहा कि उसकी जो बनावट थी, उस समय की जो गाड़ियां हुआ करती थी, जो इंजन हुआ करते थे, उसकी बनावट भी समथिंग डिफरेंट थी. आगे टनल की तरफ, फ्यूनल की तरफ थी. फ्यूनल मतलब कि हम कूपी समझते हैं ना, कूपी जिसमें तेल डालते हैं या कुछ हम उसे ये करते हैं, क्लियर करते हैं जो गंदगी होते हैं, तो वो फनल की तरह बने हुए थे. वो जो लोकोमोटिव इंजन था, रेलवे के जो इंजन थे व्हीकल, वो उसकी बनावट जो है वो फनल की तरह थी. एंड देन आई न्यू, तब मेरे को समझ में सब कुछ आने लगा. टू मेक श्योर I walked over to a newsboys and glanced at the stack of a paper at his feet. मैं अपने इससे जो सीन देखा, whatever the scene I saw, to become confirmation, हम कंफर्म करने के लिए थोड़ा आगे बढ़े एक लड़का की तरफ, जिसके हाथ में बहुत सारे न्यूज़पेपर थे. एक लड़का दिखाई पड़ा, उसके हाथ में बहुत सारे न्यूज़पेपर थे. स्टैक ऑफ पेपर, स्टैक मतलब होल्ड, सो मेनी. द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड, उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड. What the newspaper it was in the hand of boy, the name of that newspaper was world, the world. And the world has not been published for years. हालांकि ये न्यूज़पेपर बहुत सालों से बंद था, इसका पब्लिशिंग बंद हो चुका था, अब ये पब्लिश नहीं हो रहा था. तो मतलब ये है कि ये भी एक ओल्ड था.
तो whatever the writers saw over there, they all were a very old fashioned. ये जितने भी चीज दिखाई पड़ रहे थे उस थर्ड लेवल पर, ग्रांड स्टेशन पर, ये जितने थे वो सब पुराने जमाने के थे। न्यूज़पेपर देखा, वो न्यूज़पेपर भी अब बरसों से बंद हो चुके थे, उसकी पब्लिशिंग बंद हो चुकी थी। The lead story said, जो उसमें कहानी छपी हुई थी उसके बारे में बोल रहे हैं। The lead story said something about President Cleveland. उसमें जो न्यूज था वो वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में लिखा हुआ था। इससे पता चलता है कि क्लीवलैंड उन दिनों राष्ट्रपति हुआ करते थे जिन दिनों ये न्यूज़पेपर छपता था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. फाइनली मैंने डेट देख लिया और वो न्यूज़पेपर जो फ्रंट में ऊपर में था, जो बॉय के हाथ में था, वो न्यूज़पेपर था 11 जून 1894 का। तो अभी तो 2021 चल रहा है। अब आप गेस कर सकते हैं हाउ ओल्ड द स्टोरी इट वाज, यह कहानी कितने पीछे की है। अब आप इसे गेस कर सकते हैं कि यह कहानी लंबी, कहानी कितने लॉन्ग बैक। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, मैं वहां से कहां चला गया, खिड़की की तरफ चला गया जहां पर टिकट बिकते थे। विंडो, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy ticket that would take Louisa and May anywhere in the United States we wanted to go. वहां पर वो टिकट हमें मिल रहे थे, जहां हमारा जो प्लेस था जहां हमें जाना था, वो लुइसा प्लेस का नाम दिया है, वहां से वो ट्रेन खुलती थी। तो मैं अपने प्लेस का टिकट लेने के लिए मैं विंडो के पास से चला गया। Would take Luja and me anywhere to the United States we wanted to go in the year 1894 and I wanted 2 tickets to Galesburg, और मैं गेल्सबर्ग के लिए मैं 2 टिकट मुझे चाहिए था। इलिनॉइस, have you ever been there? It is a wonderful town still with a big old frame houses. Have you ever been there? मैंने पूछा अपने फ्रेंड से कि क्या आप वहां कभी गए हैं? It was a wonderful town still with big old frame houses, huge lawn and tremendous tree whose branches meet overhead and root the streets. कहा कि वो जो प्लेस था वहां के बारे में जो खासियत है, लंबे लंबे पेड़, उसके रूट जो है बहुत पुराने, जो डेप्थ में जाते हैं, इस प्रकार के कुछ ऐसे प्लांट थे जिसका जिक्र उन्होंने अपने फ्रेंड से किया है। क्या आप वहां विजिट किए हैं? आपने देखा तो वहां कितने ओल्ड फैशन की चीजें हैं, और ह्यूज लॉन है, ट्रेमेंडस ट्री है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, कुछ ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूट ऑफ द स्ट्रीट, उसके ब्रांचेज जो है नीचे तक चले आते हैं, जो लोगों से टकरा जाते हैं जब लोग वहां से क्रॉस करते हैं। तो एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, वहां की समर जो है इतने लंबे होते थे मानो कि वह 2 बार आ चुका हो। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन, लोग बाहर निकल के अपने लॉन में बैठते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार, वहां जो लोग हैं वो क्या पीते थे? सिगार पीते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिला जो थी वो पत्तों के पंखे बना रही थी। पंखा जो बना रही थी वो पाम लीव्स की बना रही थी, मतलब पत्तों से पंखा बना रही थी, मतलब हाथ से काम कर रही थी कुछ। with a fire fly all around in a peaceful world. Really, यह जो संसार था जो मैंने देखा वो काफी पीसफुल था, वो काफी क्वाइट था। To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future,
I wanted 2 ticket for that. कहा कि यहीं पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी और मुझे यहाँ के लिए ही मुझे टिकट चाहिए था. I wanted 2 ticket for that. और मुझे 2 टिकट चाहिए था. उन्होंने उस लेवल का एक्सप्लेन किया कि क्या उन्होंने पाया उस लेवल पर, थर्ड लेवल पर कैसी दुनिया थी वहां की, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को. शाम से अपने फ्रेंड, साइकेट्रिक फ्रेंड है, उससे वो एक्सप्लेन करते हैं. द क्लर्क फिगर द फेयर. वो क्लर्क जो है वो फेयर जितना लगता है किराया उनका, वो फिगर मतलब वो दिखाया कि इतने फेयर आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि 2 टिकट लेना था ना. ही ग्लांस एट माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर. वो मेरे टॉप पर दिख रहा था, मैंने जो टोपी पहना था उसके ऊपर देखता था, और जो किराया था वो मेरे को जो है वो दिखा रहा था. एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट. कि आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट. मेरे पास पैसे तो थे ही, दो कोच के लिए मेरे पास पैसे थे. वन वे बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी. हम जब पैसे गिनने लगे ना तो क्लर्क मेरे ऊपर देख रहा था. ही नोडेड एट द बिल. वो सिर हिलाया. दैट आर नॉट मनी मिस्टर. ये पैसे मैं नहीं लूंगा मिस्टर. ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि आप मेरे को ये समझ रहे हो कि आप मुझे बुद्धू बना दोगे, यू वुड नॉट गेट वेरी फार. एंड ग्लांस एट द कैश ड्रावर बिसाइड हिम. उसके बगल में कैश ड्रावर था. बोला कि देखो ये जो मनी आप दे रहे हैं ना, ये मनी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल. क्योंकि जो पैसे थे ना वो पुराने किस्म के थे. हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डे. वो पैसे थे जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं. एंड डिफरेंट लुकिंग. वो देखने में भी अलग थे. मतलब वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार की वो पैसा एक्सेप्ट कर रहा था विंडो वाले, वो पैसा मेरे पास नहीं थे. वो पैसे जो है वो कुछ दूसरे टाइप के पैसा ले रहा था. जैसे बहुत सारे क्वाइन होते हैं ना जो आज नहीं चलते हैं, पहले के क्वाइन आप देते हैं दुकान पर तो एक्सेप्ट नहीं होता है. तो वही कह रहे हैं कि ये जो हो मैंने जो दिया ये वो एक्सेप्ट नहीं किया. वो बोला कि ये तो नहीं चलते हैं, क्योंकि वहां पर ओल्ड फैशन के सब कुछ थे और ओल्ड फैशन के तो थे नहीं उनके पास, क्योंकि राइटर जो थे वो तो चूंकि न्यू मॉडर्न एज के थे. लेकिन उस दुनिया में जहां पहुंच गए वहां तो सब कुछ ओल्ड था. तो वहां ओल्ड सिक्के, ओल्ड पैसे वो एक्सेप्ट किए जा रहे थे, इसलिए इनको जो है वो पैसा एक्सेप्ट नहीं किया. My dear students, here class is I'm going to do over the class here because just after 5 minutes I have class in class 9, so I can't continue more it. So you can leave it, and I'm just informing to Deepak. He will just finish the class here because just he got it. So till here we did. The next day we shall see the same lesson. Right? Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. I'm just calling Okay, sir. to Deepak. He will just stop the classes.